કામનાઓ કે છે, ગીતાની અંદર કામ એટલે કામનાઓ હોય. હા 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 એ બધી છોડીને મોહ જીત સર્વ દોષા અધ્યાત્મ નિત્યા વિનિવૃત્ત કામા પછી દ્વંદ્વ વિમુક્તા એટલે સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત. દ્વંદ્વ વિમુક્તા સુખ દુઃખ દ્વંદ્વ વિમુક્તા સુખ દુઃખ સર્વે એ સુખ દુઃખ થી વિમુક્તા એનો અર્થ જ આવે છે આ વિતરાગ, કે સુખને પણ ભૂલી જવાનું છે, સુખમાં સુખી નથી થવાનું, દુઃખમાં દુઃખી નથી થવાનું. હા, એ જે આપણે વિતરાગતા શબ્દ કરી રહ્યા છીએ ને એ યાદ છે. હા હા બસ, સુખમાં પણ રાગ નહીં અને દુઃખમાં પણ. દુઃખમાં દુઃખી થાવ એ એક રાગ જ છે, પણ કે દુઃખ આવ્યું છે ને દુઃખની અંદરથી બહાર નથી આવ્યા, તમે એની પીડામાંથી બહાર નથી નીકળી રહ્યા. અને આપણને ગમે, ખબર છે, દુઃખ આવે ને તો આપણને 100 જણને કેવું ગમે છે. આપણે એને એન્જોય કરીએ છીએ. આમ જોવા જાવ તો મારી સાથે આમ થયું, મારી સાથે આમ થયું, એ આપણે 100 જણને કહેવા જઈએ છીએ ને. વિતરાગતાને સમજવાની છે આપણે, વિતરાગતાને. હા એ જ કહું. હા હા બસ આજ વાત છે. એનું કારણ શું છે ખબર છે? એ કહેવાનો આનંદ છે. બસ આજ મજા ક્યાં છે ખબર છે? આ વસ્તુને આપણે એન્જોય થી લઈએ છીએ. હા બસ બસ આપણો આજે રસ છે ને એ આપણો એમ છે કે આ નથી આવ્યું ને, જો આ નહીં આવ્યું ને, હવે આને બીજી ભાષામાં નિંદા જ છે, બીજું કઈ જ નથી. બીજી ભાષામાં આ કમ્પ્લીટલી નિંદા છે, પણ એ આપણે સુખ ભોગવીને કરીએ છીએ. બસ વાત આ છે. અને આ જ કર્મ ચડાવીને જાય છે, આપણને ભાન જ નથી પડતું. એટલા કર્મ ચડાવીને જાય છે કે જેની કોઈ વાત નહીં. હવે જુઓ, હવે શું થાય ખબર છે? મને તમારી સાથે બેનપણા, બરોબર, પણ હું કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ મળે તો હું તમારી ચોક્કસ ખોટી વાત કરું ને કરું. થયું શું ખબર છે? તમારી સાથે હું સારું રાખું છું અને તમારા જ માટે બીજાની પાસે હું ખોટું બોલું છું. એટલે આ જે વસ્તુ બની ને એ તમારા કોઈના માટે નહીં, ખાલી મારી એકલી માટે. હવે હું આખું ફોકસ મારા ઉપર કરું તો મેં જે મારા મનમાં છે ને એ મેં કર્યું જ નહીં. કારણ કે તમારી સામે હું તમારા વખાણ કરું છું, એટલે મારા મનમાં તો તમારા વખાણ છે એ વાત પાકી. પણ બીજા પાસે હું તમારા વખાણ કરવાના બદલે હું તમારા દુર્ગુણ બોલું છું. ખબર હોય પણ હું એમાં આનંદ કોણ લે છે આમાં? હા બસ આનંદ કોણ. એટલે આમાં થયું શું ખબર છે કે બિંદુ ને તમારા દોષ બી દેખાયા, તમારા ગુણ બી દેખાયા, બંને દેખાયા. એનો અર્થ કે બિંદુનું જ મગજ ખોટું થયું એમ. ક્યાં તો એ ગુણ ને પકડશે ને ક્યાં તો એ દોષ ને પકડશે. બે ભેગું તો પકડવાનો પ્રશ્ન જ નથી. हरिओम। आज का टॉपिक आगे चलेंगे। पिछले जो भी प्रश्न और जो भी बात हमारी जहां पर अटकी थी वहां से हम आगे जाएंगे। आज आगे चलने के लिए जो लेशिया हमारे स्वभाव को बनाती है या जन्म से हम जिसको लेकर आते हैं, हमारे पिछले टॉपिक में एक निष्कर्ष निकला था। एक निष्कर्ष ऐसा निकला था कि इंसान अपने स्वभाव को अपने ही जन्म के साथ लेकर आता है। हमारी बातों से ये निष्कर्ष निकला है और ये निष्कर्ष ये चीज बताता है कि हम अपने स्वभाव को जन्म से ही साथ लेकर चलते हैं।
खूप राहिलेच नाही आज. अब इस चीज को हमें बदलना है, हमें अपने इसी स्वभाव को बदलना है, क्योंकि सबको पता है वो क्या स्वभाव लेकर आए हैं। देखो, अब सबसे पहले हमारे पास क्या-क्या कार्ड खुले हैं, पहले हम उसको देखेंगे। हम हमारे मूलभूत स्वभाव जो हम जन्म से लेकर आए हैं, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो ये नीचे की 5 लेशिया में से कौन से विभाग में जाता है। हमें अपना ऑब्जर्वर खुद बनना है, खुद बनना है कि हम कृष्ण लेशिया में है, कापोत लेशिया में है, नील लेशिया में है या फिर तेजस लेशिया या पद्म लेशिया। ये 5 लेशिया में से हम अपने आप को कौन-सी लेशिया में रखेंगे। बिल्कुल क्लियरली, क्लैरिटी के साथ अपनी सोच और अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हुए हमें ये निर्णय करना है, हमारा नंबर ये 5 में से कहाँ आता है। अब आपको दूसरी एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व करनी है कि आप कहीं 2-3 लेशिया में तो नहीं डिवीज़न में जा रहे हो। जा सकते हो, क्योंकि जो कर्म का उदय आपके भूतकाल में भी आया होगा, तो वो कर्म आप जो लेशिया में बांध कर बैठे होंगे, वही लेशिया में भोगने के समय आप वापस जाओगे। आज हम ये चीज़ जानेंगे। जैसे कि मैंने कोई अशुभ कर्म किया हो, अशुभ कर्म करते वक़्त मेरी लेशिया तब मान लो कि कृष्ण लेशिया थी। मैंने कोई न कोई पूर्व के कोई भी भव में अगर कोई अशुभ कर्म किया है और वो मैंने अशुभ लेशिया के अंदर किया है, तो वो कर्म इस जन्म में भोगते समय मेरी लेशिया चाहे तेजस हो, लेकिन मैं कुछ समय के लिए जब वो कर्म उदय में आए, मैं कृष्ण लेशिया में ही चली जाऊँगी। ये चीज़ को हमें आज जानना ही जानना है। क्योंकि प्रयत्न से अच्छाई को पकड़ के रखना पड़ता है। हमें आप ये ऑब्ज़र्व करते होंगे, बहुत बार ऐसा होता है। हम अच्छे हैं, हम अच्छे बनने की कोशिश में अपने आप को पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रख और लगाम की तरह कस के रखते हैं हम मन को, कि हमारा मन दुर्ध्यान में नहीं जाना चाहिए, हमारा मन दुर्भाव में नहीं जाना चाहिए। आपके सामने रावण का एग्जाम्पल बिल्कुल खुला है, उसको ही ध्यान में रखो। जब उसने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था, परमात्मा तीर्थंकर की उसने भक्ति की थी, तब वो पूरी तरह से पद्मलेशिया में थे। जब उसने शिव जी का ध्यान किया, शिव जी की स्तोत्र पूजा और लाखों वर्ष तक उसने ध्यान किया, तब भी वो पद्मलेशिया में थे। शिव जी के शिष्य बने, उनसे सब चीजें सीखी, तब वो ही लेशिया में थे। लेकिन ये सारा वो माहौल से बाहर निकलने के बाद जब उसको प्रति वासुदेव कर्म का उदय आया होगा, प्रति वासुदेव का अर्थ ही होता है उसको 3 खंड को जीतना होता है। और वो भी दुर्मम तरीके से सबके अपनी-अपनी राज्य को, उनके प्राणों को छीन के उसको जीतना होता है। उसको छीनना होता है, उसको जीतना नहीं होता, सीधी बात। प्रति वासुदेव को 3 खंड का साम्राज्य छीनना ही होता है और छीनना, सबको मार के छीनना, उसको बंदी बनाना, अनैतिक तरीके से राज्य को छीनना, ये सारा कृष्ण लेशिया में ही होता है। अगर वो कृष्ण लेशिया में वापस ना जाए, तो वो ये कार्य कर ही नहीं पाएँगे, सीधी बात। तो पद्मलेशिया में ये सारा धर्म करने के बाद, ये सारा पुण्य बाँधने के बाद, तीर्थंकर नाम कर्म बाँधने के बाद, शिव जी की भक्ति करने के बाद, शिव जी के पास जाके उनसे शास्त्रों को सीखने के बाद, बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र, ये शास्त्र उन्होंने सब कुछ सीखा, वो सबके बावजूद वो वापस जब अपने राज्य में और राज्य की कक्षा में राजा बनने के लिए गए, तो वो अपनी यही प्रति वासुदेव कर्म के उदय होने पर
फिर से वो अपनी कृष्ण लेशिया में चली गई। वो लेशिया में जाने के बाद उन्होंने सभी नागलोक, पाताल लोक, देवलोक, सबको पकड़-पकड़ के बांधा है। सबको पकड़-पकड़ के बंदी बनाया है, पकड़-पकड़ के मारा है। वो वाली और सुग्रीव, वाली को तो वाली के साथ भी उन्होंने युद्ध किया। उन्होंने यहाँ तक कि इंद्र और वहां तक किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। दानवों को वो अपने साथ लेकर गए। कुबेर देवताओं को परास्त करने के बाद कुबेर जो उनका पितराई भाई था, उसका ही ये सोने का महल था। कुबेर का ही ये लंका सोने की थी। कुबेर का ही पुष्पक विमान सब उसके पितराई भाई का, मत अरे पितराई तो नहीं कहेंगे हम, अपना ही परसाव का सगा नहीं होता है ना, पिता एक ही है, माता दो अलग है बस। कुबेर और रावण की माता अलग है, पिता एक ही है। तो अपने ही भाई और मेरे ही पिता का ये राज्य है और वो मेरे हक में आना चाहिए, ये सोच के रावण ने कुबेर के ऊपर चढ़ाई की, कुबेर को लंका से बाहर निकाला, उसका राज्य भी हड़प लिया और उसी का पुष्पक विमान भी हड़प लिया। आपको ये पता होगा कुबेर देव के मामले में हम बहुत कुछ सुनते हैं, दिवाली में लिखते हैं, है ना, कि हम कुबेर जी का भंडार भरा हुआ रहे, क्योंकि कुबेर को भंडारी कहा गया है। देवों की जो स्थिति है उसमें कुबेर को भंडारी माना गया है। उत्तर दिशा के देव है, जो हमारी चारों आठों दिशाएं हैं उसमें उत्तर दिशा के देव है कुबेर। और वहां उनको उनके ही राज्य से बाहर निकालने में उनको कामयाबी मिली। क्यों? क्योंकि प्रति वासुदेव कर्म का उदय था और इस उदय के कारण अच्छी सोच को भी बिल्कुल दबा के रख दिया, डांट दिया उसने। उनके अंदर से पद्मलेशिया के भाव निकले नहीं, दबे। हमें समझना है इस बात को, वो दबे, क्योंकि जो कर्म का उदय था वो प्रति वासुदेव कर्म का उदय, और ये कर्म के उदय में, प्रति वासुदेव कर्म के उदय में, प्रति वासुदेव हमेशा वासुदेव को ही जाकर परेशान करते हैं। ये बात हमें समझनी है। ये सारा कर्म का उदय। जो दो व्यक्ति सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो, वासुदेव प्रति वासुदेव, ऐसे 9 बनते हैं, एक नहीं 9 बनते हैं कुछ काल के अंदर। जैसे ये 4 युग, कलयुग, हिंदू परंपरा में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, जो 4 युग है वो 4 युग मानो, या जैन परंपरा में उत्सर्पिणी काल मानो, 10 कोड़ा-कोड़ी। जो भी समय है उसमें 9 वासुदेव, 9 प्रतु वासुदेव होते ही होते हैं और 9 बलदेव, इतने होते ही होते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर शक्ति का ज्यादा आविर्भाव करेगा, ज्यादा उत्थान करेगा, अपनी शक्ति को कुछ हद तक जगा देगा, तो उसको वासुदेव नाम कर्म का, प्रति वासुदेव नाम कर्म का उदय होता है। देखो समझेंगे, इस चीज को भी समझेंगे कि आज एक सामान्य व्यक्ति प्रति वासुदेव और वासुदेव तक का कर्म कैसे बांध सकता है। इसके लिए एक ही चीज को सोचनी है। हम अपने वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान में से बहुत सी ऐसी व्यक्तियां हैं जो अपने एरिया में, अपने कामकाज में इतनी शक्ति को अपने अंदर भर के बैठे हैं कि उनके सोचने मात्र से सब काम हो जाते क्योंकि वो भी ऐसे ही नाम कर्म लिखा कर आए हैं। कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी साधना करके, ध्यान दीजिए आप, बड़ी आत्म साधना करके अपने आत्मा को इतनी मजबूत बना देगी, इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली बना देगी कि उसको ऐसे ही विश्व के जो 63 शलाका पुरुष है उसके अंदर उसका जन्म होता है। जैसे 10 अवतारी पुरुष माने हैं ना, ये 10 अवतारी पुरुष हिंदू धर्म ने माने हैं, वो 10 अवतारी पुरुष भी अपने अपने मजबूत कर्मों के कारण बनते हैं।
64 जोगणी, ये सारे उनको फिर जोगड़ी और देवियों की उपमा दी जाती, उनको ये उपमा दी जाती, जैसे सीता, द्रौपदी, ये सारे ऐसी ही स्त्री शक्तियां बनी थी, हुई थी, हुई थी। दुर्गा, काली, महाकाली, ये सारी शक्तियां हैं। उसको आप शक्ति क्यों कह रहे हो? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में जबरदस्त शक्ति को उत्पन्न किया था। उन्होंने अपने शरीर में ही इस शक्तियों को उत्पन्न किया। और इसको सब मानते हैं, ऐसा नहीं है हिंदू ही मानता है, सारा जैन धर्म भी इनको मानता है। उनके भी शास्त्रों में इनका नाम 64 जोगणी के रूप में दिया गया है। चंडी, चामुंडा, दुर्गा, काली, महाकाली, ये सब नाम उनमें अंदर है, उनके शास्त्रों में है। 50 वीर के नाम है, उसमें ये वीरभद्र, उसके बाद भैरव, काल भैरव, जो भी नाम अपने जो देवों के आते हैं ना, शंकर भगवान के 50 रूप की कहे जाते हैं हिंदू में, और जैनों में इनको शक्ति मानी गई है। हमें इनकी शक्ति के स्तोत्र तक पहुंचना है बस। हमारा जो विषय है वो ये है कि एक जीवित मनुष्य अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देता है, इतना शक्तिशाली बना देता है कि वो आने वाले भवों में इस प्रकार से मजबूत और शक्तिशाली जीव बनकर जन्म लेता है, जो समझिएगा आप शब्द को, जो आने वाले समय में एक ऐसा योद्धा, मजबूत योद्धा भी कह सकते हो और एक अवतारी पुरुष भी आप कह सकते हो, जो ऐसा शलाका पुरुष बनके जन्म लेता है। और ये शलाका पुरुष बनकर जन्म लेने में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई लेश्या है ना, तो वो है तेजस लेश्या। आज उसी तेजस लेश्या के अंदर ही आज हम सब, पूरा संसार इसी लेश्या के अंदर पड़ा हुआ है। तेजस लेश्या एक ऐसी लेश्या है जो आपको अभी तक, आप मानसिक रूप से संसार के मध्य में ही पाए जाते हो। राजा की तरह जीना, राजा की तरह लोगों की सेवा करना, राजा की तरह सबकी रक्षा करना, आप अपने राज्य धर्म को निभाओगे ना, तो ऐसा राजा, जैसे आज कोई भी हो, आज बीजेपी की गवर्नमेंट में ऐसे बहुत से आपको नेता मिलेंगे जो सचमुच में राज्य धर्म निभा रहे हैं। एक दो तो है ही नहीं, इसलिए मैं एक दो का नाम तो लूंगी भी नहीं। बहुत से ऐसे व्यक्तियां हैं जो आज 125 करोड़ को लीड कर रहे हैं, वो ऐसा कर्म बांध रहे हैं तेजस लेश्या के अंदर कि आने वाले समय में इन्हीं में से कोई इस 63 शक्ति शलाका पुरुष के अंदर जन्म लेगा ही लेगा, और वो भी इसी तेजस लेश्या के साथ। बात क्लियर हो रही है? हो रही है? रावण ने भी अपने पूर्व जन्म में ऐसी ही तेजस लेश्या के साथ उसने भी ऐसा कर्म किया होगा, तो रावण का हम तेजस लेश्या मानेंगे, अगर वो प्रति वासुदेव में है तो भी उसकी तेजस लेश्या मानी जाएगी। क्यों पता है? क्यों? वो जैसा भी था प्रति वासुदेव, अपनी लोगों के लिए, अपने दैत्य राक्षस प्रजा के लिए वो भगवान के बराबर होता है। उसने सीता को परेशान किया, उसने राम को परेशान किया, उसने लक्ष्मण को परेशान किया, उसने बाली, सुग्रीव, सबको परेशान किया। लेकिन उसने ये परेशान इसीलिए किया क्योंकि उसने अपने राज्य, अपने लोगों को वह एक शक्तिशाली राज्य बनाकर लंका को मजबूती से चारों तरफ खाई से बनाकर सुरक्षित रखना चाहता था।
और यही उसकी तेजस्लेशा है, यही उसकी तेजस्लेशा। तेजस्लेशा आपको प्लस माइनस दोनों रिजल्ट देती है। आप ड्यूटी निभाते हो, एक व्यक्ति के लिए ड्यूटी निभाओगे तो दूसरी व्यक्ति को नाराजगी देनी ही पड़ेगी, है ना? अगर घर में आप बेटे को महत्व दोगे तो बेटियां नाराज होगी, अगर बहू को महत्व दे दिया तो भी बेटियां नाराज होगी। आप सत्यवादी भी बनने गए तब भी किसी के लिए सत्यवादी बने तो दूसरा जरूर नाराज होगा। हम कभी भी एक समय में सब व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तेजस्लेशा में है। तेजस्लेशा में है इसलिए हम अपना फर्ज निभाने जाते हैं। अगर यही लेशा हमारी हमने बदल के पद्म लेशा कर ली, एक स्टेप ऊपर चढ़ गए, तो हमें किसी घर में या किसी झगड़े या किसी भी प्रॉब्लम से कोई लेना देना रहेगा ही नहीं। हम कह देंगे सबको भी अब आप अपने अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लो, आप हमें बीच में मत डालो, फैमिली को बोल दो आप। अब हमें बस जो समय मिला है हम अपने लिए जिएंगे, अपनी आत्मा के लिए जिएंगे, अपनी सोच के लिए जिएंगे। आप अपने अपने सारे प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लो। जिस दिन आपने ये कह लिया ना, आप न्यूट्रल बन गए, आप तटस्थ बन गए। जिस दिन बड़ी बात हुई या जिस दिन बड़ा प्रॉब्लम हुआ उस दिन हम आपके सामने आएंगे। ना उससे पहले आपको हमारी किसी बात का बुरा ना लगाना है, ना हमें आपकी कोई बात का बुरा लगेगा। चाहे वो बच्चों की फैमिली हो, चाहे वो आपके भाई बहन जो भी हो, आपकी पूरी अपनी फैमिली हो, सबके साथ अब आपके संबंध अगर पद्मलेशिया में आप जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल संभावी कोई अगर कुछ कह जाता है ना, उसका भी बुरा नहीं लेना है। अगर कोई 2 शब्द बोल गए, भाई-बहन भी बोल गए, आपको यही सोचना है कि ये सारा जो पहले का भरा हुआ है ना, वो बाहर आ रहा है। हम किसी वो आप जो पानी की थैली होती है ना, गर्म पानी की हॉट वाटर बैग, आप अगर वो खाली बैग के अंदर पानी भरने जाओगे ना, तो अंदर से गुड़, गुड़, गुड़ हवा ही बाहर आएगी, परपोटा बन के। कोई भी चीज़ खाली तो रहती ही नहीं है, हवा अंदर जगह ले लेती है। इसी तरह जो भी बात व्यवहार में बनती है, वो आपके और उसके दिमाग में जगह ले ही लेती है। आप अब लेशा बदल रहे हो, तो पुरानी चीज़ है, वो तो बाहर आएगी ही आएगी। उसको तो आना ही आना है। रावण के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उसका पहले का जो स्वभाव था, वो पद्मलेशया वाला था। ये सबसे अच्छी बात थी। रति वासुदेव तो उसने कर्म के उदय आने पे हुआ। रति वासुदेव कर्म का उदय तो वो जब तक राजा बनने योग्य नहीं होगा, तब तक तो आएगा ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को 25-30 साल के पहले राज्य पद तो मिलता नहीं है। तो 25-30 साल की उम्र के पहुंचने के बाद अगर उसको प्रति वासुदेव का उदय आया, तो उससे पहले तो ज्ञान, ध्यान, पढ़ना, पढ़ाई वो सारा पद्मलेशा में हो गया। ये सबसे बड़ा फायदा था उसका। उसके कर्म में नीचे लेशा पद्म दबी हुई है और ऊपर लेशा, ऊपर की लेशा कृष्ण लेशा आई। उससे उसी के कारण वो बच गए। सिर्फ उसी के कारण बच गए। हम सबके साथ तो ऐसा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
इसीलिए हमेशा हमें प्रत्येक पल में अलर्ट रहना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारी दूसरी सोच क्या होगी। कभी भी मानसिक रूप से, सोच के रूप से दुर्भाव दिमाग में कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता आने वाला कौन सा कर्म उदित होगा। आप सब मेरे सामने आए हो, मेरा आपके साथ कौन सा कर्म उदित होगा वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे हर एक स्टेप में अगर मैं ये सोचती रहूं कि मुझे जैसा है वैसा ही दिखाना है, ये सबसे पहला नियम है कि जैसा है वैसा बताओ, है कुछ और दिखाओगे कुछ, वो नहीं चलेगा। क्योंकि है मन में है काली लेशिया और मैं बता रही हूँ सफेद लेशिया। समझ रहे हैं आप? मेरे मन में है कृष्ण लेशिया कर रही, ये आदमी का मौका जैसे ही मिले मैं उसका पूरा पूरा काम तमाम कर दूं, ऐसी मैं सोच रही हूँ और आपके सामने हंस हंस के बात कर रही हूँ। आपके लिए मैं दूसरों के सामने बहुत 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 अलग जगह पे या सबके सामने आपके सामने आपका बखान कर रही हूँ, और जैसे ही मौका मिले आपका अगर कोई बढ़िया काम बन रहा है तो उसको तोड़ फोड़ विध्वंस करने के ही मूड में रहो। ये बहुत गलत है, हमारे अपने लिए सिद्धांत क्या है या सिद्धांत गलत है या सब ये प्रकृति से विपरीत है, उस पे हमको जाना ही नहीं है। हमें इस बात पे हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए गलत है, हमको सिर्फ इसी बात पे जाना है ना। मैं आपके लिए गलत सोच रही हूँ, अगर मेरे मन में गलत भाव है तो मेरी जुबान पे वो गलत भाव आपके लिए है, वो आपके ही सामने खुलने चाहिए, किसी और के सामने नहीं। हाँ, मुझे अगर आपसे कंप्लेन है तो मुझे आपको ही बतानी है, ये तय है। किसी और को हाँ, बता दो, उसमें कोई गलत नहीं है। मुझे अगर आपसे कोई शिकायत है और मैं आपसे वो शिकायत कर रही हूँ तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है पता है? कर्म का उदय यही है कि मैं आपको आपकी गलती बताऊं। आपके भी कर्म का उदय, मेरे भी कर्म का उदय, तभी तो मुझे आपकी शिकायत दिखी ना। मेरे मन में आपके लिए कोई दुर्भाव आया या आपकी शिकायत नजर में आई तो ये सीधी बात है कि ये आपके ऐसे ही कर्म का उदय है, तो जो है वो मुझे बताना चाहिए। उससे उससे अगर बात सुधर सकती है या काम सुधर सकता है, आप समझिए, काम सुधर सकता है तो इससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर मेरे बताने से आपका काम बिगड़ने से अटक जाए और वो काम बहुत अच्छे से निपट जाए, तब आपको भी ये सोच में आएगा कि अरे ये आपने गलती नहीं बताई होती ना तो मेरा पूरा का पूरा काम बिगड़ गया होता और लोगों के सामने वो गलत इंप्रेशन से बाहर आता। अगर उसकी जगह मैं वहां तब चुप रहूं और आपका काम बिगड़ने के बाद मैं सबको बताती फिरूं कि देखो ये एक ऐसा काम करके बैठे, ये होता है नए कर्म का बंध। अब ये हमारे ऊपर है कि जो कर्म का उदय चल रहा है उसको बंद करना है या उसमें से नए कर्म को खड़ा करना है। ये सब हमारे ऊपर निर्भर है और कोई आएगा ही नहीं बताने के लिए। आप अपने आत्मा के ऊपर ढेर पड़ा है जो कर्मों का, जो भी लेश्या का, सब उसमें आप अब आपको लेशिया पता चल गई है ना। एक बात समझ लेना कि आज ये मैं बिंदु बोल रही हूँ तो मेरे अंदर मेरे कर्मों के ऊपर 6 की 6 जो भी कर्म के ढेर है ना उसमें सारे प्रकार की लेशिया के कर्म लगे हुए होंगे, होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। आपके सामने मैं अच्छी ऐसी बन रही हूँ। प्लीज 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 माइक बंद करो, बर्तन की आवाज आ रही है। रिक्वेस्ट।
जो भी मेरे आत्मा के ऊपर जो भी ढेर लगा हुआ है, जितने भी कर्मों का फल चढ़ा हुआ है, वो सारे कर्मों 6 की 6 अलग-अलग सब प्रकार की लेश्याओं में बंधे हुए पड़े हैं। जिस दिन मैं मेरे हाथ में वो हीट स्प्रे लेके किचन में स्प्रे करूँगी ना, वांदा और उसके ऊपर सबके ऊपर जो कैसे वांदा ना आए और जो है वो मर जाए, तब मैं कृष्ण लेशा में हूँ उस दिन, उस समय। और जो भी सारा कर्म बांध रही हूँ ना, वो सारा कृष्ण लेशा में बांध, चाहे मेरा भाव नहीं है, मैं नहीं सोचूंगी कि मैं उनको मारना चाहती हूँ, लेकिन घर में बच्चे हैं, सब है, बीमारी ना आए, ये सब सोचना पड़ता है, सब सोचना पड़ता है। और ये सब सोचने के बाद और हृदय में दर्द होता है, द्रवित होता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत गलत कर रही हूँ, ऐसी पीड़ा के साथ जब मैं हीट स्प्रे कर रही हूँ ना, अगर मैं पीड़ा के साथ में स्प्रे कर रही हूँ ना, तो मैं सीधी तेजस्लेशा में पहुंच गई। मैं ये नहीं चाहती कि ये जीवों की वजह से ऐसी बीमारी आए जो घर के सारे बच्चे और सब बीमार पड़ जाए। मैं ये नहीं चाहती। ये हमारी जो क्रिया होती है ना, वो क्रिया बताती है कि आप कौन-सी लेशा में हो, अभी, टाइम भी। हो सकता है 1 दिन बाद आप वापस शुभ लेशा में आ जाओ, मगर वो जो कर्म किया, जो लेशा में किया, वो भुगतने के लिए हमें वापस उसी लेशा में जाना पड़ेगा। बहुत सिंपल फंडा है कर्म का। कोई कोई उसमें नयापन कोई नहीं आ सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो कृष्ण एशिया में जो उन सारे कॉकरोच को मारने के लिए आपने बांधा है, उसको आपको कृष्ण एशिया में भोगने जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, सब साधु संत घर-बार छोड़ के आश्रम में और खुले में रहते हैं, जंगल में खुले में। वो जो भी गुफा में जाकर रहते हैं ना, सब साधु संत जो भी गुफाओं में जाकर रहते हैं ना, वो गुफा के अंदर उनको ये सारे छोटे-छोटे जीवों के साथ रहना है। गुफा में कभी सर्प भी निकल सकता है, चूहे भी निकल सकते हैं, सिंह भी आ सकता है, पर वो किसी भी को तकलीफ या दुःख या दवाई डाल के मौत नहीं देते। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो पद्म ईर्ष्या में पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि सन्यासी को घर-बार छोड़ना ही चाहिए। वैराग्य और सन्यासी बनने के बाद अगर आपको पद्म ईर्ष्या चाहिए, तो ये 4 दीवार बहुत मजबूर करती है सब पाप करने के लिए। इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि ये सारी पाप की क्रियाओं से हम इसी प्रकार से बच सकते हैं कि अरे कुछ नहीं, ये कर लिया तो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना? ये तो फर्ज है, इसलिए इससे हमें कोई पाप नहीं लगता। हम आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इससे पाप नहीं लगता है या पाप नहीं बनता है, ये सब गलत बात है, ये पॉसिबल ही नहीं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको उसके कर्म का, उसी क्रिया का पाप लगेगा ही लगेगा। आप उसी कर्म को बचने के लिए आपको फिर से जब वो कर्म उदय में आए, तब आपको शुभ लेशा में जाना ही पड़ेगा। सीधा सीधा एक ही पॉइंट बाहर आता है कि जिस समय हमें मोक्ष चाहिए, हम इस पूरी जीने मरने की श्रृंखला से अगर हम बचना चाहते हैं, तो हमारा मनुष्य जन्म का अंतिम समय, अंतिम ध्येय वैराग्य और संन्यास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए।
और आना ही चाहिए। यही कारण है, याद करो, आप हिस्ट्री याद करो, कोई भी धर्म हो, पांचों पांडव हिमालय पे जाके ही उन्होंने अपने अंतिम समय में साधु बन के जीवन गुजार किया। राम और सीता सरयू नदी में जाके अंतिम समय में, सीता तो जमीन में चली गए थे, लेकिन राम जी भी अपने अंतिम समय में सरयू नदी सन्यासी बनकर ही चले गए थे। अब देखो, कोई भी राजा या साधु या महात्मा को आप देख सकते हो, क्योंकि बिना सन्यास, बिना कुछ समय सभी जीवों को अभय दान, सन्यास का मतलब ही है सभी जीवों को अभय दान, कुछ नहीं और कुछ नहीं। सन्यास का सीधा अर्थ है आसपास के जितने भी छोटे बड़े सब जीव है, सबको मैं अभय दान दे रहा हूं, सब जीवों को अभय दान। ठीक है, अभी हम ध्यान करेंगे। ध्यान और ये दान, अभय दान और दया, ये दो सब्जेक्ट को तो हमें बहुत घूट घूट के मजबूत बनाना है, मजबूत, क्योंकि ये दान और दया यही दो चीज है जो हमें हमारे ये अशुभ लेशिया के स्तर में से बाहर निकाल के शुभ लेशिया तक हमारी आत्मा को पहुंचा सकता है। ठीक है, चलो अभी हम ध्यान शुरू करेंगे, समय हो रहा है, ध्यान शुरू करें। सांस भरिए। ओम। 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 ओम।
शांत हो जाइए। ध्यान की अवस्था में बिल्कुल शांत होकर बैठना है। आंखें बंद रखोगे मगर आपकी भीतरी दृष्टि दो भ्रमर के बीच में लगाइए। थोड़ा सा ध्यान के लिए मैं जरूरी बात बताना चाहूंगी। आज एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कॉकरोच को हटाने के लिए। हम जैसे घर में चारों तरफ किचन में दवाई डालते हैं। दवाई इसीलिए डाला जाता है ताकि वो जगह साफ हो और वहां पर नए नए बार बार जो हजारों कॉकरोच का जन्म होना है वो ना हो। मतलब हम हजारों ऐसे जीवों को उसकी उत्पत्ति होने से बचाने के लिए ये कार्य करते हैं। पहला तो काम जो हमने किया वो हमने चाहे कृष्ण नील या कापुत अशुभ लेशिया में कर दिया, दवाई डाल दी, बहुत सारे कॉकरोचों का नाश हो गया। लेकिन आप ये सारा करने के बाद दूसरे तीसरे दिन एक और कार्य करेंगे। वो कार्य होगा कि जो जगह आपने जो दवाई डाली है वहां पर प्रिकॉशन के रूप में, जैसे कि लक्ष्मण रेखा, जैसे कि और कोई चीज कि वो कपूर की गोलियां, ऐसी बहुत सारी चीज, डामर की गोलियां जो मिलती है बाजार में होती है, उसे रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है ताकि उसकी सुगंध के कारण वो एरिया में जल्दी से जल्दी दूसरे ऐसे जीवों की उत्पत्ति ना हो। जो ये क्रिया हुई और उसी के कारण बहुत सारे नए नए ज्यादा कॉकरोच और उसके अंडे उत्पन्न होने कम हो गए। ये एक सामान्य क्रिया है। अब इसी प्रकार के ऊपर से हम हमारे इस आत्म ध्यान की क्रिया को समझने की कोशिश करें। देखो, हम ये जो ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान सामान्य कोटि के ध्यान से कुछ अलग प्रकार का ध्यान है। ये ऐसा ध्यान है जिसमें आपको अपने शरीर की किसी भी रचना या स्थिति के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हम अपने आत्म प्रदेश, जो हमारे इसी शरीर के 2.5वें भाग में है ना, एक पंचमांश भाग जो भी हमारे बॉडी का जितना होगा, जैसे कि 5 फुट हमारा शरीर है तो उसका 2.5वां भाग, उसी भाग में आत्म प्रदेश स्थित होते हैं और उसी आत्मा के ऊपर लेशियाओं के साथ लगे हुए हजारों प्रकार के कर्म उसके ऊपर चिपके हुए रहते ही रहते हैं। हमारे आत्म प्रदेश के ऊपर ऐसे कर्म है। जिस प्रकार से आप अशुभ लेशिया में रह के उन सारे कॉकरोचों का और वो सारी जगह को आपने दवाई डाल के क्लीन किया है, उसी प्रकार हम इस प्रकार के ध्यान में रह के वो सारा आत्म प्रदेश जो अशुभ कर्मों के नीचे लटके पड़ा हुआ है उनको हम शुद्ध करेंगे। बस हमें सिर्फ आत्म शुद्धि के लिए ही आत्मा के प्रदेशों का ध्यान करना है और ये ध्यान करने से हम उन सभी आत्म प्रदेशों के ऊपर लगे हुए कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। आपको इसीलिए शांत होके सभी बाहरी इंद्रियों का उपयोग बंद करना है और भीतर के हमारे उस आत्मा के प्रदेश का जो प्रकाश पुंज है, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ उसी के ऊपर। अब आप 2-3 मिनट के लिए उसी प्रकाश के ऊपर फोकस करोगे। बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत।
अभी हम प्राणायाम करेंगे। सांस भरो, एक नाक बंद करके सांस भरिए। अभी भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद, कान बंद, नाक भी बंद। सांस भरो। एक्सरसाइज करेंगे जो हम आजकल कर रहे हैं वो। आपके हाथ का कोने कोना टकराता है इससे, इसी के कारण लंग्स, हार्ट, आपके सारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन मजबूत होंगे, जो भी कोरोना के समय में इसकी बहुत जरूरत है। मैंने आपको वीडियो भेजा था, शायद देखा होगा आपने। हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। हरिओम, थैंक यू पिंटू, थैंक यू प्रवीण भाई। वेलकम। हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच आप सबको। हरिओम हरिओम।
ठीक है, कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो ठीक है, अभी हम अगले मंगलवार को मिलेंगे। हुँ? अभी ट्यूसडे को मिलेंगे, सैटरडे संडे आ रहा है, तो अभी 2 दिन के बाद, ठीक है? हाँ जी, ज़रूर। हरि ओम। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।